ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਬਣੀਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਬਣੀਏ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੋ ਜੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੋਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਦਬਾਓ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਗੋਲ ਨੂੰ ਉਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ। ਪਰ ਆਖਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਮਿਹਨਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚਿੰਗ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਿਲਜ ਮੈਂਟੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਲਾਈਵ ਕਲਾਸਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਦੇਖੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੇਪਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੜੋਸੀ ਸੂਬਾ 'ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚੋਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਰੇ ਬੋਰਡਸ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਡਿਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਰਮਾਨ ਜਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਜਲਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੱਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਏਜ 28 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੀ, ਮਤਲਬ 2016 ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਡੀਐਸਪੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ 32 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ 'ਚ ਜੋ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਰਿਟਨ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਲਕਿ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਦਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਆਰਪੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਿਲਰਿਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਦ ਵੀ ਇੰਝ ਮਿਲੇਗਾ, ਆਈਟੀਬੀਪੀ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਸੀਪੀਓ 'ਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜੋ ਪੇਪਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਸਿਲੇਬਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੇਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 2-3 ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟਰਾਇਲ ਮਤਲਬ ਕਿ SET ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀ ਇੱਕ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਉਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲੇਮ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਡਰੱਗ ਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਟਰਾਇਲ ਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੋਈ ਐਡਿਕਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਹ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੈਸਟ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। 100 ਨੰਬਰ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਜਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ 5 ਸਬਜੈਕਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਈ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਨਰਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਕਰੰਟ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੌਲੇਜ ਅਬਾਊਟ ਇੰਡੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ, ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਨੂਮੈਰੀਕਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਯਾਨੀ ਬੇਸਿਕ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 45% ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ SC ST OBC ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ 50% ਅਦਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਨੇਚਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ।
ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸੈਕੰਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਟੈਸਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ PST ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਲੱਗ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਾਇਜ਼, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 2 ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਪੇਪਰ ਤੇ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਨਿੰਗ ਸੀਗੀ, ਪਰੰਤੂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 27 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਈ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚੇਂਜਸ ਕੀਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਾਰ ਕਿ ਯਾਰ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕੁਛ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜੋ ਰੇਸ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਬਾਉਂਸ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੱਕ ਦੌੜ 'ਚੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਗਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2016 ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਇਹ 2000 ਮੈਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਅਸਿਸਟੈਂਟ, ਰੈਂਕ ਆਫ ਕਾਂਸਟੇਬਲ, फिर हो गया कि सब इंस्पेक्टर हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेली कम्युनिकेशन, विंग ऑफ टेली कम्युनिकेशन, स्पोर्ट्स सर्विस कैडर ऑफ पंजाब पुलिस। ठीक है जी। जो कि अदर स्टूडेंट के बच्चे भी अगर सुन रहे हैं तो मैं आपको भी थोड़ा हिंदी भाषा में बता देता हूं ताकि मैं दोनों भाषाओं को यूज करूंगा तो आप भी समझ सकते हैं। पंजाब में हमारे पुलिस भर्ती है, ये लगभग नोटिफिकेशन के तौर पर हम बात करें तो इसका अभी तक कोई ऐसी संभावना नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि किसी भी भर्ती पर 1 साल का समय लगता है। तो हो सकता है सरकार इसका नोटिफिकेशन है वो हमें जल्दी ही इसका 8वें-9वें महीने में दे दें, ताकि हो सकता है कि बच्चे फॉर्म भरेंगे 1.5-2 महीने का टाइम फॉर्म भरने में लगा देंगे। इसके बाद में वैसे समय दिसंबर तक चला जाएगा। दिसंबर के बाद में ये अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये टाइम है ऑटोमेटिकली दिसंबर 2021 तक चला जाएगा। तो ऐसी संभावना है कि कोई भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है जब इसके इलेक्शंस आसपास में आते हैं तो वो लगभग 1.5 साल पहले अपनी रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को शुरू कर देते हैं। तो सो दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2016 के बाद में हमारे पंजाब के अंदर इतने प्रकार की वैकेंसीज आउट होने के चांसेस हैं, जैसे कि रिक्रूटमेंट कांस्टेबल डायरेक्ट जो कि पुलिस कैडर और इसके साथ में जो कि आर्म्ड पुलिस फोर्स थी, और इसके साथ में अगर बात करें तो जैसे इन्होंने यहाँ पर आर्म्ड पुलिस डिस्ट्रिक्ट कैडर की बात की है तो इसमें जेल वार्डन की वैकेंसीज भी हमारे अब की बार आएंगी क्योंकि उसके लिए ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है। ठीक है। इसके बाद में बहुत सारी जानकारी ये आती है कि कांस्टेबल के अंदर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी होता है, टेली कम्युनिकेशन विंग होता है, क्योंकि लगभग बात करें तो आजकल जो डिजिटल का टाइम है तो कोई भी किसी भी स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर होता है वो टेली कंपनी बल्कि डिजिटली ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस होता है, तो इसीलिए उसकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी ये बन जाती है। ठीक है। अब मैं इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको देने की कोशिश, जैसे कि हमारे पंजाब के अंदर है जनरल कैटेगरी का 700 रुपये फॉर्म फीस रखा गया था, SC ST OBC के लिए 300 रखा गया था, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फीस नहीं थी, और ये मेजरमेंट की कुछ बातें थी। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं हो सकता है तो फेर बदल हो जाए, परंतु तुसी की करना है देखो अज तुसी अगर मैं थोड़ा ये चीज़ अज वीडियो बनाने का मेरा मकसद की है, मेरा मकसद है थोड़ियां भावना थोड़े सेंटीमेंट्स नूं समझना, थोड़ी कदर करना है। मैं थोड़ा ये चीज़ कहांगा कि अगर अज साडे कोल जिन्ना भी समय है अगर मैक्सीमम असीं लगभग 1 घंटा डेली रनिंग नूं देवांगे, ठीक है, एक तो तुसीं तंदुरुस्त रहोगे, थोनों कोई बिल्कुल बीमारी लगन के चांसेस बहुत 0 बराबर हो जाएंगे, थोड़ी इम्यूनिटी बढ़ेगी, थोड़ा पोटेंशियल बढ़ेगा, और तुसीं अपने फिजिकल की प्रिपरेशन इदां ही कर लोगे। क्योंकि तुहानूं पता है कि अगर कोई बच्चा अगर ये चीज़ सोच रहा है कि नहीं नोटिफिकेशन आने तो बाद आपां करांगे तो शायद तक वो बहुत पीछे रह जाएगा, क्योंकि तुसीं लिखती पेपर की तैयारी भी करनी होएगी। सो दैट तो ये बातें रहेंगी आप सभी के लिए। अब बात करता हूँ मैं एंड ऑफ द सेशन
कि भाई इसके लिए प्रिपेयर कैसे करें, कौन सी बुक सबसे बढ़िया हो सकती है। आखिर एक ऑनलाइन कोचिंग सेंटरों का चलन हो गया है आजकल, आप देखते हैं कोई कहता है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ो, कोई कहता है मेरे टेलीग्राम में जुड़ो, हम आपको ये करेंगे। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ सभी को कि आप आज ऑनलाइन जहाँ भी जुड़े हैं अपने एक अच्छी सी टीम को पकड़ लीजिए, उससे अच्छे से तैयारी करें आप, ठीक है। सभी टीचर अपनी जगह अच्छे हैं, परंतु बात ये होती है कि आप अगर देखेंगे एक जगह देख लिया, दूसरी जगह देख लिया, तीसरी जगह देख लिया, चौथी जगह देख लिया, तो इनमें हमेशा आपको दिक्कतें होंगी और कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद में एक बात मैं और भी बताना चाहूँगा कि ये वीडियो पर्पज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको अवेयरनेस दे रहा हूँ कि अगर आप में से वो बच्चे हैं जो जिनकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं है, कम से कम वो भी डिज़र्व करते हैं यहाँ पर आने के लिए। और इसमें ये भी है कि बहुत सारे बच्चे ये रेगुलरली क्वेश्चन सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई क्यों ना इस बार जो कि कांस्टेबल का एक रिटन पेपर के साथ आप सिलेक्शन करें, क्योंकि एक मान के चलते हैं कि आजकल मान लीजिए भी कोरोना की वजह से बच्चों का 12th क्लास में एक पेपर हुआ है, एक पेपर होने तो बाद रिजल्ट बने, तो ऑटोमैटिकली बच्चों का वापस तो रिजल्ट बने ऑलमोस्ट सारे ही बच्चे 70 80 89% तक है। तुसी मान लो माफ़ी चाहांगा अगर मान लो कि अज ये भर्ती भरते हैं, हालांकि हो सकता है इन्हां चों बहुत सारे बच्चे लीजिबल भी नहीं होंगे, पर मैं एग्जाम्पल देना चाहना वा कि तुसीं जिस समय च हो सकता है तुसीं अज तुहाडी उम्र 27 साल है और सडनली अगले महीने भर्ती आ जाती है और तुसीं फॉर्म भरोगे, तुहाडे है लगभग 55% 60% 12वीं च है, और अज के दौर पर गल करिए तो बच्चे दे लगभग 70-80% है, तो तुहानूं तो मैरिट चों वैसे छुट गया, मतलब तुहाडा तो सिलेक्शन आ ही नहीं सकता है। तो मैं ये चीज़ करके इस करके कहना है कि बच्चों की मंग बिल्कुल जायज़ है कि लिखती पेपर सिंपल जा पाया जाए, जिथे सारे बच्चों को पता लगे कि लिखती पेपर की प्रिपरेशन करनी है और सरकार को भी इस चीज़ का एहसास हो कि असं इंटैलीजेंट ते एक क्रीम स्टूडेंट्स को पिक कर रहे हैं। दोस्तों जिक्र करते हैं कि प्रिपेयर किवें किया जाए। प्रिपेयर करने के 2-3 ढंग ने। पहला ढंग है सैल्फ प्रिपरेशन, सब तो इंपॉर्टेंट मन्निया जाता है। सैल्फ प्रिपरेशन के सानू जरूरत होती है कि साडा घरे बैठ के एक नितनेम बनाना पेगा, ठीक है, साडा नितनेम बनाना पेगा। इनू करंतु परंतु च नहीं लेना। नितनेम का मतलब है कि डेली रूटीन च आपां नूं अपना टाइम कोई बनाना पेगा कि ठीक है मैं इन्ने टाइम नूं ये सबजैक्ट पढ़ना आ सबजैक्ट पढ़ना आ। ये थोड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। इस दे लई तुहानूं खुद नूं एक अपने आप का मैंटोर बनना पेगा, तुहानूं अपने आप का एक मोटीवेटर बनना पेगा, तुहानूं अपने आप का एक अच्छा ट्यूटर बनना पेगा। तुसीं अपने आप लई कंटेंट सर्च करोगे, अपने आप लई किताबां सर्च करोगे, अपने आप लई पढ़ोगे और अपने आप लई चीज़ां नूं शॉर्टलिस्ट करोगे। दूजा साधन होंदा है कि कोचिंग नूं बई ठीक है साडे च अगर गल करते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि घरेलू काम बहुत ने, सोशल मीडिया ते सानू काम बहुत ने, तो साडा एक बेस नहीं बन रहा, साडियां कमजोरियां बहुत ने, ठीक है। भर्ती असी भी होना चाहुंदे हैं। तुहानूं पता होएगा हर साल जो कि बच्चे अजकल IAS और UPSC और PPSC पेपर क्रैक करते हैं, वो बच्चे लाखां रुपया कोचिंग सेंटरां च अपना दे दिंदे ने। परंतु मैं ये भी नहीं कहांगा कि हमेशा कोचिंग सेंटरां तो बहुत सारे पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को कोचिंग सेंटरां तो एक स्ट्रैटजी, एक तरीका, एक एक्सपर्टेशनस, दूसरी गल है कि तुहानूं तुहाडी कमजोरी ऑब्जर्व करने वास्ते एक मैंटोर मिल जाता है। कहते हैं ना कि कोई भी बंदा घरों कोच नहीं बनता, कोच बनने के लिए उसनूं घरों प्लेयर भी नहीं बनता, और कोच प्लेयर बनने के लिए भी उन्होंने कोचिंग की जरूरत है, तो कोच बनने के लिए भी हमेशा उन्होंने सीखने की जरूरत है। इस करके कोचिंग एक अपना रोल अदा करती है कि तुहानूं टाइम टू टाइम एक तुहानूं जोड़ेगी, तुहाडे ते प्रैशर बिल्डअप करेगी, तुहानूं आदत पाएगी, तुहानूं उस आदत के अनुसार ढालेगी। समझ पा रहे हो ना। तो तुसीं इहदा करके कोचिंग एक अपना रोल अदा करता है जो कि किसी भी भर्ती के लिए साडा सिलेक्शन यकीनी बनाउंदा है। मैं कहांगा कि अगर असीं चित्त ते दिल पूरे मन नाल इस चीज़ करांगे तो डेफिनेटली कोई भी भर्ती है जो कि अपने लिए इम्पॉसिबल नहीं होएगी। तीसरी बात आती है इसके बीच में बुक्स। अगर आप बुक्स को पढ़ेंगे तो आप कैसे कर सकते हैं। देखो बुक्स में आपसे बहुत बुक्स में ऐसा है कि मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। करंट अफेयर आपको पढ़ना पड़ेगा और इसके साथ में जीके और जो साइंस की बात है, तो इसके लिए 3 सबसे बेस्ट बुक हैं, आप जो मर्जी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले लूसेंट की बुक है, आप लूसेंट की बुक को पढ़िएगा, ठीक है। लूसेंट की बुक आपके लिए बहुत अच्छी है। लूसेंट की बुक मैं आपको बता दूँ तीनों में आती हैं, करंट अफेयर में तो नहीं आती हैं परंतु जीके में मिल जाएंगी, ठीक है, जनरल साइंस में मिल जाएंगी और इसके साथ में आपको रीजनिंग के लिए भी मिल जाएंगी, ठीक है। अब बात आती है कि आप अगर मान लीजिए
कि इसकी ये बुक नहीं लेना चाहते हैं तो आप अरियंत की बुक भी पढ़ सकते हो। अरियंत की भी तीनों प्रकार के एडिशंस आते हैं, बल्कि अरियंत की तो इससे भी बढ़ के एडिशंस आते हैं, ठीक है। और अरियंत अपने जो एडिशंस, जितने भी एडिशंस होते हैं, इनको रेगुलरिटीज बेस पे रेगुलर अपडेट्स करता रहता है। और तीसरी बुक है जो सभी पेपरों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक को हाईलाइटेड बुक होती है, वो होती है किरण पब्लिकेशन की। किरण पब्लिकेशन की बुक भी आप पढ़ सकते हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि खास तौर पर वो बुक उठाइएगा जिसमें जीके के क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं, जिसमें रीजनिंग के कॉन्सेप्ट ज़्यादा होते हैं, जिसमें प्रैक्टिस के ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें, हाँ। अब अगर आप मेरे से ये चीज़ पूछोगे कि सभी इन बुक्स की कॉस्ट कितनी है, तो मैं आपको ये चीज़ बताऊंगा कि लगभग अगर आप किरण की जीके की बुक लेते हो तो 500 रुपये से कम आपको जीके की बुक नहीं मिलेगी। चलो फिर भी आप खींच के 300 रुपये लगाओगे तो आपको करंट अफेयर की बुक लेनी हो सकता है लेनी पड़े। इट्स ऑल अप टू यू, आपकी मर्जी है, ठीक है। जीके की बात है, साइंस की बात है, रीजनिंग की बात है और मैथ्स की बात है। तो मैंने इसके लिए ऑलरेडी किरण और रीजनिंग मैथ के लिए भी रेकमेंड कर दिया है। तो आप अगर बेसिकली ये 5 बुक्स लेते हो तो 5 बुक्स में 300 के हिसाब से 1500 रुपये आपको बुक्स पे करना पड़ेगा। मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि हमेशा किसी से मांग के बुक नहीं पढ़नी चाहिए, खुद की बुक होनी चाहिए। और उसी खुद की बुक पे आप इसके अंडरलाइन कर सकते हो, चीज़ों के नोट्स बना सकते हो और उनको हाईलाइटेड इश्यूज पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं कि आप अगर मान लो कि कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदना चाहते हैं, कोई सा भी है, कहीं से भी खरीदो आप, ठीक है। हाँ, बहुत सारे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं जो आपको पंजाब पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए पहले से ही तैयारी करने का मौका दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, मैं कहांगा चंगी गल है, क्योंकि अज आप घरे बैठांगे तो अपना वेला आप उंज ही बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। जे तुहानू मैं इत्थे नहीं कह रहा कल भर्ती आ रही, परसों भर्ती आ रही, नथिंग, गल भर्ती दी नहीं है। बहुत सारे बच्चे कई बार कमेंट करके इतराज़ जताते हैं, ठीक है जी। लेकिन मैं सिर्फ तुहानू इत्थे अवेयरनेस कर रहा कि इस भर्ती की प्रोसेस की है। इस भर्ती की प्रोसेस फिजिकली तुसी खुद प्रिपेयर करना है। तुसी अगर डेली रूटीन च प्रिपेयर करोगे तो तुसी फिट रहोगे और ये संबंध च फिजिकली प्रिपेयर भी कर लोगे। गल आउंदी है कि ये गर्ल्स भर सकदियां, डेफिनेटली गर्ल्स भी भर सकदियां। गर्ल्स नूं हमेशा कोई भी सरकार है, चाहे वो किसी भी कोई भी गवर्नमेंट है, हमेशा उसकी प्रायोरिटी होंदी है कि गर्ल्स नूं ज़्यादातर बढ़ावा दईए। क्योंकि पिछे RPF यानी रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स दे विच 50% लगभग ऑलमोस्ट यानी फीमेल का कोटा रखा गया सीगा। हो सकता है कांग्रेस सरकार भी पंजाब दे विच इदां कर देवे। तो देखो, ऑनलाइन बैचेस कितों भी तुसीं अगर इनरोल करते हो तो एक इहो जी टीम नाल करो जिहड़ी टीम तुहानूं तकरीबन तुहाडा बजट भी ठीक ठाक रखे और तुहानूं फैसिलिटी भी ज़्यादा प्रोवाइड करे, ठीक है। तो गिल्ज मेंटोर एक सिंपल जा कोर्स प्रोवाइड कराउंदा है। इस कोर्स नूं मैं तुहानूं कहना बार बार इफ़ यू वांट, अदरवाइज साडियां यूट्यूब ते क्लासेस अवेलेबल नहीं, परंतु कई बार की हुंदा कि अटेंशन स्पैशल बच्चे नूं चाहिदी है। स्पैशल अगर तुसीं चाहुंदे हो डेली क्लासेस थोनों मिलणगियां, फ्री बुक्स मिलणगियां, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, तकरीबन 50 तो लैके 70 तक के टेस्ट मिलणगे, टॉपिक वाइज स्टडी नोट्स मिलता है। अल्फाबैट की गल करिए, ठीक है, डिकोडिंग की गल करिए, एनालॉजी की गल करिए, डायरैक्शन की गल करिए, टॉपिक वाइज 50 70 क्वेश्चन मिलते हैं जिहदा तुसीं वर्कशीट करते हो। फिर स्पैशल डाउट सैशन हुंदा है, किसी भी स्टूडेंट्स नूं कोई डाउट हुंदा तुसीं असीं हमेशा कहने निश्चित तौर पर पुछ लो। साडी टीम उन्होंने कोशिश करती है कि उन्होंने हो सकता है सवाल उन्होंने असीं साडी ऐप दे विच चैट बॉक्स बने उहदे च रिप्लाई कर दिंदी है, या फिर साडी टीम कोशिश करती है कि उन्हां बच्चों नूं वीडियो बना के समझा दिंदी है। तो असीं हमेशा प्रयास करते हैं। और सब तो अच्छी गल है कि गिल्ज मेंटोर दे इन्हां कोर्स की खूबी की है। देखो, खूबी ये है कि साडे कोले एक्सक्लूसिव बैच अवेलेबल ने, ठीक है। तुहानूं इंतजार नहीं करना पेगा कि क्लास किन्ने बजे नहीं, सारियां क्लासां तुहानूं इकट्ठियां भी मिल जाणगियां। वैलिडिटी होएगी जब तक तुहाडा पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर का पेपर नहीं हो जाता, तब तक ये कोर्स कंटीन्यू चलता जाएगा। ये कोर्स चलेगा कित्थे, साडी एप्लीकेशन ते चलेगा। साडी ऐप नूं तुसीं इंस्टॉल करना वा और उस ऐप दे विच जाके तुसीं पंजाब पुलिस सब इंस्पैक्टर के कोर्स विच इनरोल कर सकते हो। हुण जित्थों तक गल करदे हैं कि इहदी फीस कितनी है, ओनली इहदी फीस है वो 3000 रुपये है। इस 3000 दे विच तुहानूं कंप्लीट बुक्स फ्री है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज फ्री है, कंप्लीट तुहानूं टॉपिक वाइज स्टडी नोट्स फ्री है, कंप्लीट डेली क्लासेस फ्री है। मतलब कि तुहानूं अगर मैथ की गल करिए तो इन्ना जबरदस्त इत्थे मैथ कराया जाता है, बिल्कुल बेसिक स्तर तो लैके और हाई लैवल तक का है। और एक सवाल के लगभग 2 3 तरीके समझाए जाते हैं ताकि बच्चे को ग्राउंड बन जाए कि मैनू एक मैथड नहीं आया, दूजे मैथड का मैं आंसर कर सकता है, तीजे मैथड का आंसर कर सकता है, सो दैट ये तुहाडे कोल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो यू दैट लगभग मैं गल कहांगा कि जो साडे कोल स्टडी नोट्स भी ने
ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ PPSC ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ BPO ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਡੂਪਰ ਯਾਨੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਜੋ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, UGC ਨੈਟ ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, PSSB ਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ PSPCL ਦੇ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਦ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਨਾਉਂਸ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਗਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੀਸ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਐਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਬਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਗੇ ਤਾਗੇ ਭੱਜਣਗੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਟਾਫਟ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਇਨਰੋਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।